In the previous class, we have discussed about the evidences of evolution. We have started with the topic evidences of evolution, and we said that if we want to understand the evolution, it is very important to know or to understand the different types of evidences that can be available. Because how can we say that evolution has occurred? How can we say that there are changes which occur in the organisms which existed in the past and are now existing today also? Are they very similar from their ancestors, or are they different from their ancestors? In order to know all these things, evidences play a very important role to understand evolution. तो ऐसे ही एविडेंसेस में हमने कल डिस्कस किए थे पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस. हमने डिस्कस किया था कि पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो होते हैं दे आर ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स. वो हमें फॉसिल्स के फॉर्म में मिलते हैं. और फॉसिल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द सेडिमेंट्री रॉक्स, दे आर प्रेजेंट इन द डीप लेयर्स ऑफ द सॉइल्स. Sometimes the fossils contain only the hard part or the impressions of some of the parts of the organisms. Sometimes the whole organism is being fossilized. तो ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के फॉसिल्स मिलते हैं जिसकी स्टडी से हम जान सकते हैं what relation do they have from the organisms which were ancestor to them. मतलब ancestors से वो कितने अलग हैं या कितने सिमिलर हैं. ये सारी चीजें हम पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस से जान सकते हैं. The next type of evidences which are also very important to understand and is a very important part of NCERT textbook. Though the examples which we are going to consider are beyond your textbook, but still the topic has been mentioned in your textbook, and that is evidences from comparative anatomy and morphology. Here we are talking about different types of organisms with the different organs, organ systems, homologous organs, analogous organs, vestigial organs. इनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. आपने देखा होगा कि इवोल्यूशनरी स्टडी में जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि जो फिशेस होते हैं उनका हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है. फिर जब हम फिशेस से एक स्टेप आगे एम्फीबियंस पे बढ़ते हैं तो उनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है. जब हम उनसे आगे रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है बट एक इनकम्प्लीट पार्टीशन होता है उनमें. और जब हम मैमल्स और एव्स की बात करते हैं उनके पास कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट है. So this can be considered that in a course of time the organ systems have become more complex. Here we are discussing only about circulatory system, but अगर हम digestive system देखें, हम respiratory system देखें, तो lower organisms में respiratory cells या respiratory structures हैं, पर वो काफी simple हैं, जबकि हम में there is a well developed respiratory system, a complex respiratory system is present in us. This shows that evolution or changes is a part of life. और ऐसे changes जो होते रहते हैं इसी की वजह से evolution हम जान पाते हैं कि evolution होता है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं similarly we are talking about the evidences that we get from internal structures मतलब anatomy and external morphological structures that is morphology. तो यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंटली हमें 2 चीजें पढ़नी है, होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स. तो पहले मैं मेंशन करती हूँ अबाउट द फर्स्ट वन दैट इज होमोलोगस ऑर्गन्स. स्टूडेंट्स ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये टॉपिक कई बार पूछा जाएगा एग्जाम्स में भी. और इसके एग्जाम्पल्स मतलब होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या इंक्लूड होता है ये सारी चीजें आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा. तो होमोलोगस ऑर्गन्स, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन्स मतलब क्या. होमोलोगस ऑर्गन्स these are the organisms, these organs are having similar fundamental organization but different functions. different functions क्या लिखा है कि होमोलोगस ऑर्गन्स ये होते हैं मतलब इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा
कि उनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर मतलब एनाटॉमी, उनका एनाटॉमी जो है वो सिमिलर रहता है ऑर्गेनिजम्स में, पर चेंज क्या हो जाता है उनका फंक्शन, फंक्शंस आर डिफरेंट बट इंटरनल स्ट्रक्चर्स आर सेम। ऐसे ऑर्गन्स को कहा जाता है होमोलोगस ऑर्गन्स, ऑर्गन्स which are anatomically similar but they are different in their functions are known as homologous organs। तो homologous organs जो है they have these organisms जिनमें homologous organs है they have same basic anatomical structure, anatomical structure but are changed in functions due to different environmental conditions। एनवायरमेंटल कंडीशंस कह सकते हैं या तो फिर हम बोल सकते हैं कि एज अ नीड ऑफ अडेप्टेशन उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर सेम रहा है पर फंक्शन जो है वो वेरी हो चुका है। अब यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन समझने के लिए हमने 3 पॉइंट पहले लिखे हैं। पहला क्या लिखा है कि ये ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल मतलब बेसिक फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, फंक्शन अलग है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि दे हैव सेम बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, मतलब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि अंदर से इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नियरली सेम है, पर फर्क क्या है, इनके फंक्शंस जो है वो अलग हो चुके हैं। और ये फंक्शंस अलग इसीलिए हुए हैं क्योंकि मे बी दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट इन अ डिफरेंट वे एंड देयरफॉर देयर फंक्शंस हैव बीन चेंज्ड। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले एग्जांपल कंसीडर करते हैं, that is forelimb of humans, that is man, cheetah, whale and bat। फोरलिम्स ऑफ ह्यूमन, चीता, व्हेल एंड बैट, सबके फोरलिम्स में क्या है, सबके फोरलिम्स में एक ह्यूमरस है, 2 यहाँ पे बोन्स है, रेडियस अल्ना, राइट, देयर विल बी बोन्स, दैट इज देयर विल बी फैलेंजेस, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ कार्पल्स। ये सारी चीजें जो है वो सेम है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स और ये जो फैलेंजेस है, ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या है, सेम है। पर इन सब में एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर सेम हुआ पर फंक्शन जो है वो अलग हुआ। क्यों फंक्शन अलग हुआ? क्योंकि ह्यूमंस में फोरलिम्स जो है दे आर यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग, कुछ लेने के लिए, कुछ अपटेक, कुछ पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं फोरलिम्स, राइट। सेम वे चीता के अंदर, फॉर चीता इट इज यूज्ड फॉर रनिंग, in most of the cases it is used for running। अगर हम whale की बात करें तो it is for swimming, अगर हम bat की बात करें तो it is for flying। तो इन सब में फोरलिम्स का स्ट्रक्चर तो सेम ही है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये बोन सारे सिमिलर ही है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है, उनके फंक्शंस में। फंक्शंस अलग है, यहाँ पे फंक्शन किसी का ग्रैस्पिंग है, किसी का रनिंग है, किसी का स्विमिंग है, किसी का फ्लाइंग है। तो ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है, होमोलोगस ऑर्गन्स, जिनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है पर उनका फंक्शन अलग होता है। एंड दे शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्यों कहा गया है इसे? डाइवर्जेंट इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनके एंसेस्टर्स में एक स्ट्रक्चर कॉमन है पर फंक्शन के बेसिस पे सब क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। एनाटॉमी सेम है चारों की पर फंक्शन क्या है, एक का ग्रैस्पिंग है, एक का रनिंग है, एक का स्विमिंग है। तो फंक्शंस के बेसिस पे क्या हो गए, ये चेंज हो गए हैं। तो भी इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब एंसेस्टरी अभी भी क्या है, कॉमन है, कॉमन एंसेस्ट्री है और फंक्शंस अलग है। इसको कहा जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब डाइवर्ज हो गए,
डाइवर्ज क्यों हो गए? क्योंकि एनाटॉमी सेम थी पर एनवायरमेंटल कंडीशंस जब अलग थी, एक को उड़ना है एक को स्विम करना है, तो एनवायरमेंटल सराउंडिंग कंडीशंस चेंज होने की वजह से इन्होंने क्या किया, अपने फंक्शंस चेंज कर लिए, और फंक्शंस चेंज कर लिए और स्ट्रक्चर सेम रहा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। दे हैव डाइवर्ज्ड टू डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो इसे कहा जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ पे हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, मॉस्किटो, हनी बी एंड बटरफ्लाई। सबके माउथ पार्ट्स की बात करते हैं। कॉकरोच, मॉस्किटो, हनी बी और बटरफ्लाई, सबके माउथ पार्ट्स में क्या इंक्लूड होगा? देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ अ लेब्रम, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ अ पेयर ऑफ मैंडिबल, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ अ पेयर ऑफ मैक्सिलम। मतलब ये जो तीन जो माउथ पार्ट्स हैं, ये हमने ऑलरेडी कॉकरोच में ये टर्म्स सुने हुए हैं पहले, ठीक है। तो माउथ पार्ट्स तीनों में सेम है, तीनों के पास लैब्रम है, तीनों के पास मैंडिबल है, तीनों के पास मैक्सिल है। ये क्या है? तीनों माउथ पार्ट्स है, ठीक है। पर तीनों के अंदर मतलब ये चारों में फंक्शंस जो है वो अलग है। देखो माउथ पार्ट सेम है, लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिलम, मतलब एनाटॉमी क्या हुई? सेम हुई। पर फंक्शन की बात करें तो कॉकरोच के अंदर माउथ पार्ट्स किसके लिए यूज होते हैं? च्यूइंग और बाइटिंग के लिए। Cockroach uses its mouth parts for chewing and biting. But when we talk about mosquitoes, mosquitoes choose the same mouth parts, that is they have the same mouth parts for sucking. They have the mouth parts for sucking up the blood. अगर हनी बी की बात करें तो they have a mechanism of lapping. उनकी जो माउथ पार्ट्स की मैकेनिज्म होती है उसे कहा जाता है च्यूइंग एंड लैपिंग। तो वो लैपिंग करते हैं, जबकि बटरफ्लाइज जो होते हैं दे आर डूइंग ओनली सिफोनिंग। सिफोनिंग मतलब आपने देखा होगा कि कई बार जो बटरफ्लाइज होते हैं वो फ्लावर्स के ऊपर सिर्फ ऐसे मंडराते रहते हैं, राइट, एंड देन आफ्टर दे सिट वेरी रेयरली ऑन सम फ्लावर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर जस्ट स्मेलिंग द नेक्टर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। तो बटरफ्लाई का मैकेनिज्म है सिफोनिंग। माउथ पार्ट्स एक है, एनाटॉमी एक है, बट इन द केस ऑफ कॉकरोच इट इज यूज फॉर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉकरोच इट इज यूज फॉर च्यूइंग and biting. In the case of mosquito it is used for sucking, right? In the case of honey bee it is used for lapping. आपने शायद हनी बी के बारे में भी देखा होगा, तो हनी बी के लिए लैपिंग और बटरफ्लाई के लिए सिफोनिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों में माउथ पार्ट सेम है पर फंक्शंस अलग है, इसीलिए ये हुआ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और ये भी एग्जांपल किसका हुआ? होमोलोगस ऑर्गन्स का। और एक एग्जांपल लेते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स का, दैट इज द कुकुरबिटा दैट हैज थॉर्न्स, बोगनवेलिया टेंड्रिल्स। थॉर्न्स हो या टेंड्रिल्स हो, डेवलप्स फ्रॉम, इट डेवलप्स फ्रॉम एक्सिलरी बड। मतलब किसी भी, यहाँ पे तो सिर्फ ऐसे कुकुरबिटा और बोगनवेलिया लिखा है, पर आप कोई भी प्लांट ले लो तो उस प्लांट में एक्सिलरी जो बड है वो एक्सिलरी बड में से ही क्या डेवलप होता है? किसी में थॉर्न डेवलप होता है, किसी में टेंड्रिल्स डेवलप होते हैं। तो है तो वो एक्सिलरी बड, मतलब एनाटॉमी उसकी क्या हुई? इट इज एन एक्सिलरी बड। पर ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी बड मतलब आपको पता होगा वो नोड पे जो एक्सिल पे जो ग्रो होता है दैट इज एक्सिलरी बड। तो वो एक्सिलरी बड में से कोई प्लांट में थॉर्न बनता है, कोई प्लांट में टेंड्रिल बनता है। तो ये थॉर्न और टेंड्रिल का फंक्शन अलग हुआ। Thorn will be used as a source of protection. Tendril will be used for climbing over because it is having a weak support. So in the case of cucurbita, in the case of bougainvillea, thorns and tendrils develop from axillary bud, but functions of thorns and tendrils are different. इसीलिए इसे भी क्या कहा गया है? homologous organ. तो ये सारे homologous organs के एग्जाम्पल हैं। इसके साथ साथ molecular homology भी होती है। molecular homology मतलब
It is similarity in molecular structures. Molecular structure. For example, proteins present in blood of man and apes, या तो आप मंकीज भी बात कर सकते हो. इनके ब्लड में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनके भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, पर कोई कोई के फंक्शंस थोड़े अलग होते हैं. तो मॉलिक्यूलर होमोलॉजी मतलब मॉलिक्यूल लेवल पे भी, कंपोनेंट्स के लेवल पे भी, जैसे कि प्रोटीन और ऐसे बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स के लेवल पे भी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है. हावेवर ये आपकी बुक में बिल्कुल भी नहीं दिया गया है. यहाँ पे आपकी बुक में 1 या 2 एग्जाम्पल्स हैं, तो आप वो भी देख लीजिएगा. और यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल भी लिखा है, तो उसे भी आप नोटिस करिएगा. 3 एग्जाम्पल्स पे बात एक ही याद रखनी है, होमोलोगस मतलब एक ही चीज याद रखनी है, सिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शन, एंड देयरफॉर दे शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ये आपको खास याद रखना है. So we are discussing about the anatomy and morphological evidences, that is the evidences which we observe in the structural organization and the functions of organisms. Here we have talked about the homologous organs. और homologous organs में क्या key point याद रखना है कि homologous organisms जो होते हैं उनमें स्ट्रक्चर जो होता है एनाटॉमिकली वो नियरली सेम रहता है, सिर्फ उनका फंक्शन जो होता है वो अलग होता है. सो एनाटॉमिकल फंडामेंटल स्ट्रक्चर रिमेन सेम एंड द functions of these organisms or function of that particular part is going to be different, and it shows which type of evolution, which is divergent evolution. Next we talk about the analogous organs. Analogous organs, they show similarity in function but are different in the fundamental, or you can say morphological structure. ऐसे ऑर्गन्स जो होते हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स के ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे पार्ट्स जिनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है उसकी, अगर हम उसकी सिमिलैरिटी की बात करें तो उनका जो फंक्शन है वो सिमिलर है, पर फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो अलग है. मतलब होमोलोगस ऑर्गन्स के ऑपोजिट होते हैं एनालोगस ऑर्गन्स. दीज ऑर्गेनिजम्स विल बी हैविंग सेम फंक्शंस बट देयर ऑर्गन्स विल बी स्ट्रक्चरली डिफरेंट. फंक्शन सेम रहेगा पर एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी जो है, उनका दिखावा जो है बाहर से, अपीयरेंस है जो बाहर से, वो भी अलग रहेगा. तो दिस ऑर्गेनिजम्स मीन्स दे शो, वी कैन मेंशन दैट these organisms with homologous organs, they show convergent evolution. They show convergent evolution. Convergent इसीलिए कहा गया है क्योंकि स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं पर फंक्शंस क्या है, सेम है. इसीलिए कन्वर्ज हो रहे हैं सब एक जगह पे. भले ही स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होने के बाद भी ये सारे स्ट्रक्चर्स का फंक्शन तो क्या आता है, एक ही आता है. और इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, कन्वर्जेंट. जबकि हम होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या पढ़ते हैं, डाइवर्जेंट, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से फंक्शंस को अलग कर दिया है. मतलब एंसेस्ट्री कॉमन थी इन द केस ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, एंसेस्ट्री कॉमन थी पर वो क्या हो चुके हैं, डाइवर्ज हो चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस. जबकि ये क्या हुए हैं, कन्वर्ज हुए, क्योंकि इनके एंसेस्टरी कॉमन नहीं है. क्या हुआ है सब अलग अलग ओरिजिन के बट दे ऑल हैव यूनाइटेड इन द ऑर्डर ऑफ ओनली देयर फंक्शंस. इसीलिए इन्हें कहा जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स हैविंग एनालॉगस ऑर्गन्स
have which type of evolution? Convergent evolution. And those organisms with homologous organs have divergent evolution. तो ये एक बहुत ही important point है, इसे याद रखना. हम analogous organs को भी थोड़ा example से देख लेते हैं. So the very first example we can consider in analogous organs. आप सोच सकते हैं कि ऐसे कौन से organisms हैं जिनमें फंक्शन सेम है और स्ट्रक्चर अलग है. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ birds, or you can say wings of birds and wings of insect. राइट, हम कंसीडर कर रहे हैं कौन सा एग्जाम्पल? विंग्स ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स होते हैं तो उनके विंग्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ फेदर्स, राइट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द इंसेक्ट्स, उनके जो होते हैं वो काइटिनियस ब्रिसल लाइक फेदर्स होते हैं या विंग्स होते हैं. फेदर्स तो नहीं होता है एक्चुअली, ब्रिसल लाइक विंग्स होते हैं उनके. तो आप देख सकते हो कि दोनों का पर्पस तो एक ही है, व्हाट? फ्लाइंग. बोथ ऑफ देम हैव अ कॉमन फंक्शन, दैट इज टू फ्लाई. बट इन बोथ द केसेस द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. एक में क्या होता है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, और एक में क्या है? दैट इज जस्ट काइटिनियस ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प्स इन देम टू फ्लाई. तो फंक्शन एक है, स्ट्रक्चर्स क्या है? अलग है. इसीलिए एग्जांपल हुआ एनालॉगस ऑर्गन्स का. दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन. हनी बी का स्टिंग कंसिडर करो तो उसके पास भी स्टिंगिंग क्यों होता है? सो दैट इट कैन रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रीडेटर. जो उसका प्रीडेटर आया है उससे वो प्रोटेक्टेड रह सके, इसलिए वो क्या कर देता है? इन ऑर्डर टू गेट डिफेंस वो स्टिंग करता है. सेम वे स्कॉर्पियंस ऑल्सो, इन द केस ऑफ स्कॉर्पियंस ऑल्सो वही रहता है. स्टिंग जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन फॉर वन सेल्फ. पर वो स्टिंग जो है, स्टिंग तो दोनों किसके लिए करते हैं? खुद के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं. पर दोनों में स्टिंगिंग के लिए स्ट्रक्चर जो है वो अलग है. हनी बी का स्टिंगिंग स्ट्रक्चर अलग होता है, जबकि माउथ पार्ट अलग होता है, जबकि स्कॉर्पियन इज ऑल्सो हैविंग अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर स्टिंगिंग. तो दोनों में स्टिंगिंग के लिए पार्ट्स क्या हुए? अलग हुए. इसीलिए इसे कहा गया है क्या? एनालॉगस ऑर्गन. Pectoral fins of shark and flippers of dolphin. शार्क होती है तो उसमें पेक्टोरल फिन्स होते हैं, मतलब जो आगे के जो फिन्स होते हैं, जो हम फोर लिम्स जो मॉडिफाई हुए होते हैं, वो उसे पेक्टोरल फिन्स कहते हैं. तो पेक्टोरल फिन्स जो होते हैं वो शार्क में होते हैं, जबकि डॉल्फिन्स में ज्यादा थिक होते हैं और थोड़े स्ट्रक्चर में अलग होते हैं, उन्हें फ्लिपर्स कहते हैं. दोनों में पर्पस एक ही है, फॉर स्विमिंग, बट फिन्स आर वेरी थिन एंड स्केली, whereas flippers are not having any scales on the surface, they are very thick muscular structures. तो दोनों स्ट्रक्चर में बहुत अलग है एक दूसरे से, पर दोनों का पर्पस एक ही है, दैट इज स्विमिंग. इसलिए स्ट्रक्चर्स अलग हुए पर फंक्शन एक हुआ, जिसकी वजह से ये किसका एग्जांपल हुआ? एनालॉगस ऑर्गन्स. राइट. तो यहाँ पे हमने इतने एग्जांपल्स कंसिडर किए हैं बर्ड्स और इंसेक्ट्स के. अब इसके अलावा हम किसी की आईज की भी बात करें तो आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ अ लोअर इंसेक्ट, दोनों की आईज जो होती है वो अलग होती है, क्योंकि दोनों में पर्पस एक ही है, ऑब्जर्विंग. आईज का फंक्शन क्या है? ऑब्जर्व करना. पर दोनों की, अगर हम आर्थ्रोपोडा की आईज देखें तो वो कैसी होती है? कंपाउंड आईज होती है. और ह्यूमंस की आईज देखें तो वो सिंपल आईज होती है. तो आर्थ्रोपोडा जैसे कि कॉकरोच की आईज का स्ट्रक्चर एकदम ही अलग है. हमें याद है कि उसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, और हर एक जो है वो एक मोज़ेक इमेज लेता है और फिर एक मोज़ेक इमेज बनता है जो जिसका रिजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं होता, पर पर्पस तो क्या है? टू ऑब्जर्व द थिंग्स. इसलिए आईज ऑफ ऑक्टोपस, आईज ऑफ आर्थ्रोपोडा, आईज ऑफ ह्यूमंस ऑल हैव सेम पर्पस, ऑब्जर्विंग, बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. सब में स्ट्रक्चर्स अलग है. तो ये भी एक एग्जांपल है एनालॉगस ऑर्गन्स का. सो हियर वी हैव रिटन 3 एग्जांपल्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स. Second, sting of honeybee and sting of scorpion. Third, we can consider pectoral fins of shark and flippers of dolphin. So these 3 are considered to be the examples which you have to compulsorily remember for analogous organs.
Along with these two, homologous, आपकी टेक्स्ट बुक में 2 ही दिए गए हैं मेनली, homologous organs और analogous organs. पर इनके साथ साथ, in order to study evolution, one more category can be considered, and that is the vestigial organs. तो थर्ड कैटेगरी हम जो कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन्स. तो यहाँ पे हमने एनालॉगस ऑर्गन्स कंसिडर किया, अब सी करके हमने लिखा है वेस्टिजियल ऑर्गन्स. तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब क्या? ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो किसी एक ऑर्गेनिज्म में रिड्यूस्ड हो जाते हैं साइज में और नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, पर वो रिलेटेबल दूसरे ऑर्गेनिजम्स में फंक्शनल होते हैं. सो वेस्टिजियल ऑर्गन्स, दीज ऑर्गन्स आर reduced in size and non-functional in some organism but functional in some other रिलेटेबल ऑर्गेनिज्म. वेस्टिजियल ऑर्गन्स कैसे होते हैं? साइज में रिड्यूस्ड होते हैं, या क्योंकि वो इतने फंक्शनल नहीं होते, तो नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स होते हैं कोई ऑर्गेनिज्म में, पर शायद वो किसी और रिलेटेबल ऑर्गन में फंक्शन हो सकते हैं. ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं. अगर हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात करें तो सब में होते हैं, ह्यूमंस में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं. तो पहले हम बात करते हैं अबाउट वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमंस. ठीक है, तो ह्यूमंस के वेस्टिजियल ऑर्गन्स की अगर बात करें तो देयर आर मोर देन 90 डिफरेंट वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं और जिनको स्टडी किया जाता है एज अ पर्पस ऑफ इवोल्यूशन. कि ऐसा कि हमारे पहले जो ह्यूमंस थे, मतलब होमो सेपियंस से पहले जो थे, वर दे हैविंग दिस टाइप ऑफ ऑर्गन्स एंड वेयर दे फंक्शनल इन देम. ये सारी चीजें भी देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू स्टडी इवोल्यूशन. तो 90 डिफरेंट वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, हम 90 तो नहीं लिखेंगे, विल मेंशन फ्यू एग्जांपल्स. तो पहला है निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन. निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन इन आइस. ये आप सबको पता है क्योंकि आपने देखा है फ्रॉग्स जो होते हैं उनमें निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन आगे होती है, इसीलिए इवन इन द वाटर they can keep their eyes open. So that is a thin layer which is present only at very corner edge in our eyes, और वो हमारे में रूडिमेंट्री हो गया है, वेस्टिजियल हो गया, और उसका कोई भी फंक्शन अब नहीं है. तो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन. सिमिलरली ऑरिक्यूलर मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना. ईयर पिन्ना के जो एडिशनल ऑरिक्यूलर मसल्स हैं उनका कोई फंक्शन नहीं है, right? A part of ear pinna is required to take up the sound, but rest of the ear pinna, the muscles do not have any role. So auricular muscles present in the ear pinna is again a vestigial organ. Same way we can consider nipples in the case of males, because males are not feeding the young ones, so there is no purpose of having nipples in the males. So it is also vestigial organ. इसके अलावा आप सबको एक तो कॉमन पता ही है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. That is also a vestigial organ. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का जो हर्बीवोर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इट कंटेन्स द एंजाइम नोन एज सेल्यूलिक्स, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है. बट एज नाउ वी आर ईटिंग ओनली कुक्ड फूड, हम रॉ खाते नहीं है, तो हमें उसे डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एंड देयरफॉर इट हैज बीन रिड्यूस्ड इन साइज. एंड इट हैज इवन बीन फाउंड इन द रीसेंट स्टडीज दैट अभी जो रीसेंट न्यू बॉर्न्स है, they are having very reduced vermiform appendix, or there is even absence of vermiform appendix in some newborn babies. ऐसा रिसर्चेस में भी आया गया है. तो मे भी ऐसा हो सकता है that after 10, 15, 20 years this organ like vermiform appendix might not be present in any of the human. ऐसा हो सकता है, we cannot very assuredly say. तो ऐसा ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स हैं. सेम वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो होते हैं वो एनिमल्स में भी होते हैं, मैं थोड़े बता देती हूँ यहाँ पे. In animals,
देयर इज प्रेजेंस ऑफ, एग्जाम्पल ही लिख रही हूँ डायरेक्टली कि वेस्टिजियल ऑर्गन इन एनिमल कौन सा हो सकता है, पेल्विक गर्डल इन स्नेक्स, और पर्टिकुलरली सारे स्नेक्स में नहीं होता पर पाइथन में होता है, तो पाइथन या शार्क में भी होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में पेल्विक गर्डल की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी क्रॉलिंग, राइट, उनके पास तो लेग्स है ही नहीं कि पेल्विक गर्डल्स हो। आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पेल्विक गर्डल्स पढ़े हैं, वो हमारा जो हिप जॉइंट होता है उसे पेल्विक गर्डल कहा जाता है। अब ये जो पाइथन है, इट इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज गोइंग टू क्रॉल इन द सॉइल, राइट, तो उसको तो गर्डल्स की या वो लेग्स की जरूरत ही नहीं है, बट स्टिल देयर इज प्रेजेंस ऑफ पेल्विक गर्डल्स इन द केस ऑफ पाइथन, तो वो वेस्टिजियल हो गया, उसका कोई फंक्शन नहीं है। तो पेल्विक गर्डल इन द पाइथन इज वन सच एग्जाम्पल। इसके अलावा देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्प्लिंट बोन्स इन हॉर्सेस, स्प्लिंट बोन्स इन हॉर्सेस। हॉर्स के अगर आप हॉर्स शू, मतलब सबसे नीचे का अगर आप हॉर्स शू पार्ट अगर आप देखोगे तो उस पार्ट में, हॉर्स शू पार्ट में एडिशनल साइड पे बोन्स होते हैं, स्प्लिंट बोन्स जिन्हें कहा जाता है, जिनका कोई फंक्शन नहीं है, राइट, उनका एक ही वैसे तो हमें बोन दिखता है, पर एक्चुअली देयर आर 2 एडिशनल बोन्स इन द साइड्स, जो शायद हमने इतना ऑब्जर्व नहीं किया होगा, पर वो स्प्लिंट बोन्स जो होते हैं उनका कोई फंक्शन नहीं है, तो वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन हुआ। प्लांट्स में भी वेस्टिजियल होते हैं। प्लांट्स के वेस्टिजियल ऑर्गन्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में स्टेमिनोड्स होते हैं, स्टेमिनोड्स होते हैं या तो पिस्टिलॉइड्स होते हैं। स्टेमिनोड्स मतलब स्टेमन है, बट इट इज नॉन फंक्शनल स्टेमन। नॉन फंक्शनल स्टेमन अगर कोई फ्लावर में प्रेजेंट है तो इट इज नॉट हैविंग एनी फंक्शन। तो कई बार फीमेल फ्लावर्स होते हैं, मेल फ्लावर्स होते हैं, साथ में होते हैं, पर स्टेमिनोड जो होता है उसमें वो मतलब जो स्टेमन होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। सिमिलरली पिस्टिलॉइड्स आर द फ्लावर्स, इसमें flowers are bisexual but the pistil does not have any role, that is pistil is non functional, तो उन्हें कहते हैं पिस्टिलॉइड्स। और इसके अलावा मतलब ऐसे तो होते हैं, और एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर के जो रे फ्लोरेट्स होते हैं, जो बाहर के वो जो होते हैं, वो तो ना ही रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ना किसी और चीज में, तो रे फ्लोरेट्स का कोई फंक्शन नहीं होता, और ये जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, इसलिए रे फ्लोरेट्स आर आल्सो एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन प्लांट्स। तो ये है थोड़े वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जांपल। तो अभी हमने 3 चीजें डिस्कस कर ली, वो आप याद रखोगे, दैट इज फर्स्ट वन होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स।